اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو میدان بدر کے حالات سے ایک بہت بڑا میسج ملتا ہے کہ اگر کسی بھی حالت میں بھی مسلمانوں کو کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. وقت آئے گا اللہ تعالیٰ پھر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر فتح مبین عطا فرمائے گا. اس لیے کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم بھائی بہنوں کی مدد فرمائے اور اسلام کو ہر جگہ غلبہ عطا فرمائے, اور شہدائے بدر اور شرکائے بدر کے صدقے میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو پھر وہی عزت, وہی آبرو, وہی وقار عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ, والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, او کما قال اللہ تبارک و تعالی الی کتابہ القدیم. صدق اللہ العظیم. قرآن مقدس میں جنگ بدر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں مختلف آیات کے ذریعے تفصیلی بیان فرمایا ہے. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس کو غزوہ بھی کہتے ہیں, اور خود یہ پہلی جنگ اسلام و کفر کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں میدان بدر میں منعقد ہوئی تھی. میدان بدر تقریباً 80 میل مدینہ شریف سے دور ایک ریتیلی جگہ ہے. وہاں پہ ایک کنواں ہے. ایام جاہلیت میں وہاں پہ لوگوں کے میلے لگتے تھے. اس کنویں کا نام بدر نامی شخص سے منسوب تھا, اور اسی وجہ سے اس جگہ کا نام میدان بدر پڑ گیا ہے. جنگ بدر اسلام و کفر کی جو پہلی جنگ واقع ہوئی ہے, اس کے کچھ بنیادی وجوہات سامنے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے اور آپ کے جانثاران بھی مدینہ شریف تشریف لائے, تو یہ کفار مکہ ان کو وہاں تک بھی پریشان کرتے تھے. ان کے چراگاہوں سے جانور چورا کے لے جاتے, ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے. اسی درمیان کفار قریش کے جانب سے ایک شخص جس کا نام عمر بن حضرمی تھا, اس کا قتل ہو گیا. تو کفار مکہ کے درمیان ایک اشتعال پیدا ہو گیا کہ خون کا بدلہ خون لینا ہے. اور ادھر ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ جو 30 اور 40 لوگوں پر مشتمل مکہ کو واپس ہو رہا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ کفار مکہ ہمیشہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں, تجارتی قافلے ان کے لوٹ لیتے ہیں, اموال و اسباب کو ضائع کر دیتے ہیں. ہم ان کا تعاقب کریں گے, ان کا تعاقب کر کے انہیں بھی ہم اس طرح سے پریشان کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مہاجر صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب تیار ہو گئے. انصار میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے رہے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سرکار اشارہ فرمائے نگاہوں سے, تو وہ کھڑے ہو گئے, ادب سے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانب اشارہ فرماتے ہیں, ہم آپ کے وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ آگ کے سمندر میں بھی ہمیں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے. دوسرے انصار کے بہت بڑے سردار حضرت مقداد بن اسود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب منافقین سے اور معاندین سے مخالفین سے جنگ کریں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے جنگ کریں گے، بائیں سے جنگ کریں گے، آپ جس طرح سے حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کی معیت میں ایک 313 افراد پر مشتمل
اسلام کا ایک لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ ادھر 313 اسلامی لشکر میں سے صرف 80 گھوڑے تھے، 80 اونٹ تھے اور ایک ہی گھوڑا تھا، اور ان کے پاس کوئی اچھا خاطر خواہ اسلحہ نہیں، ٹوٹے پھوٹے نیزے تھے، شکستہ تلواریں تھی، کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ اس کے برعکس مکہ سے جب یہ لوگ کفار مکہ میدان بدر میں جنگ کے لیے نکلے تھے تو مکمل تیاری کے ساتھ 1000 لشکر جرار لے کر چلے تھے، جن میں سے 600 ان کے پاس اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے، اور 100 گھوڑے جو زیرہ پوش سواروں کے ساتھ یہ لوگ چلے تھے، اور جدید ٹیکنالوجیکل ہتھیار کے ساتھ یہ لوگ دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور پہلے ہی یہ لوگ میدان بدر میں پہنچ کر کے جو پانی کے چشمے تھے، پانی کے کنویں تھے، ان جگہوں پر قابض ہو گئے، اور جو نشیبی علاقہ تھا جہاں پہ پانی وغیرہ کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر کے جب بعد میں پہنچے تو نشیبی علاقے میں جہاں پہ آپ نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا وہاں پہ گھٹنوں تک اونٹوں کے پاؤں دھس جاتے تھے بالو میں، اور وہ بہت ہی غیر مستقر جگہ تھی، اور جہاں پاؤں ٹھہرنے کے قابل نہیں تھی وہ جگہ۔ مگر پروردگار کائنات کی پہلی مدد یہ ہوئی کہ بارش ہو گئی، اور بارش ہونے کی وجہ سے وہ پورا علاقہ جم گیا، اور صحابہ کرام نے جگہ جگہ بارش کے پانی کو چشمے اور حوض کی شکل میں اکٹھا کیا، جو خود بھی پینے کا کام اور جانوروں کو پلانے کا کام آیا بعد میں۔ میدان بدر میں صبح کو جنگ ہونے والی ہے، اس کے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا فرماتے رہے کہ مولا ہم مٹھی بھر تیری جماعت کو تیری وحدانیت کے پرچار کے لیے اور اسلام کے تبلیغ و اشاعت کے لیے میدان میں لے کر اتارے ہیں، مولا تو ہی مدد فرمانے والا ہے۔ اگر اس جماعت کو نقصان پہنچ گیا اور یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں رہے گا۔ گویا کہ شاعر کی زبان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ جہاں سے نام ان کا مئو ہو گیا قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا، مولا یہ مٹھی پر جماعت تیری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، سو گئے، مگر رحمت عالم رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرماتے رہے، فتح و نصرت کی دعا فرماتے رہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر رات میں ایک اور واقعہ ہوا، اپنے کچھ یاروں کو لے کر سرکار اپنے ساتھ میدان بدر میں نکلے، اور سرکار نے میدان بدر میں نقشہ لگا دیا، نشاندہی فرما دیا، یہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں ابو جہل مرے گا، یہ جگہ جہاں عتبہ مرے گا، جہاں شیبہ مرے گا، ولید مرے گا، امیہ بن خلف مرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشاندہی فرمائی تھی، جس کافر کے مرنے کی ایک بال کے برابر بھی ادھر سے ادھر وہ جگہ نہیں ہوئی، بلکہ اسی جگہ وہ کافر واصل فی النار ہو گیا اور اسی جگہ اس کو مارا گیا۔ یہاں سے ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے علم غیب کے ذریعے بتا دیا تھا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، بڑے بڑے جو مکہ کے سرداران آپ کے مقابلے میں اور آپ کے صحابہ کے مقابلے میں آئے ہیں نا، ہم انہیں ذلت آمیز شکست سے دوچار کریں گے اور فلاں فلاں ان کو قتل کیا جائے گا۔ آپ نے گویا کہ علم غیب کا باضابطہ اظہار فرما کر قیامت تک کے لیے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کی پختگی پر مہر لگا دیا کہ میرے حضور کو اللہ کے عطا سے علم غیب حاصل تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش چھتری ٹائپ کا بنا دیا گیا تھا، صحابہ کرام کی صفیں لگا دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہمارے صحابہ میں سے بہت سے نہتھے ہیں جن کے پاس کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، کسی کے پاس ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، کسی کا ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر کے ان صحابہ کرام کو تھمایا اور وہ ٹہنیاں تلوار سے زیادہ تیز کام کرتی ہوئی نظر آئی، سبحان اللہ، اور زیادہ کارگر وہ ٹہنیاں صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ثابت ہوئی۔ اب اس کے بعد ادھر سے اعلان جنگ ہوتا ہے، میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں میدان جنگ کا۔
पहले क्या होता था कि पहले दोनों जानिब से एक दो दो आदमी करके मुबारज़त तलब करते, यानी कोई मेरे मुकाबले में भेजो, और उसके बाद दोनों में हाथापाई होती, जंग होती, और फिर जो मारा जाता वो फतह याब होता, जो शिकस्त खा जाता, कत्ल हो जाता, वो हजीमत उठाकर भाग जाता उसका लश्कर। इस तरीके से कुफ़ार कुरैश के जानिब से 3 लोग निकले, उतबा निकला, रबिया निकला और वलीद निकला। इन तीनों के मुकाबले में हज़रत अली निकले, हज़रत हमज़ा निकले और हज़रत औफ अब्दुर्रहमान इब्न औफ निकले। हज़रत अली ने वलीद को मारा, हज़रत अली ने उतबा को मारा, हज़रत हमज़ा ने शैबा को मारा, वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को ज़ख्मी कर दिया। हज़रत अली झपट करके उसको उसी वक्त फिन्नार फरमा दिए और फिर वापस आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ पे एक वाक़या फरमाते हैं, मैं कभी मैदान जंग में दुश्मनों से यलगार करता और कभी पलट करके मैं सरकार के घोंपड़ी में अरीश में आता और देखता तो सरकार सजदे में सर झुका करके या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम की दुआ मांग रहे थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं जितनी बार मैदान जंग से वापस आकर हुजूर की सलामती की खबरगिरी के लिए आया, हर बार मैंने हुजूर को सजदे में यही दुआ मांगते हुए देखा। इसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फरिश्तों की मदद नाजिल फरमा दी, आसमान से फरिश्तों की फ़ौज नाजिल फरमाई। पहले 1000 फरिश्ते आए, उसके बाद फिर 3000 फरिश्ते आए, यहाँ तक के 5000 फरिश्ते आए और 5000 फरिश्ते मुसलमानों के साथ मिलकर कुफ़ार मक्का के साथ जंग फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को फ़तह मुबीन अता फरमाया। और इस जंग का नतीजा ये होता है कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन अपने माबूदान बातिला पर यकीन रखते थे कि हमें हर मौके पर वो हमें हमारी मदद करेंगे, हमें कामयाबी अता करेंगे, जब उन तमाम माबूदान बातिला की जानिब से इनको कोई मदद नहीं मिली और इनके बड़े बड़े रईसों को, सरदारों को, पहलवानों को जब शिकस्त फाश हो गई और कत्ल हो गए तो उनका भरम टूट गया और उन्होंने ये समझ लिया कि इस्लाम सच्चा मजहब है जिसकी मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की फ़ौज उतारी है। यहाँ पर रुक करके एक बात और मैं बता दूँ कि सहाबा कराम जिनमें से अंसार और मुहाजिरीन दोनों की तादाद थी और दोनों ने मिलकर के मैदान बद्र का मोर्चा संभाला था, उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि हम जब मैदान जंग में उतरे तो हमने अपने दाएं बाएं झांक करके देखा तो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे, ना तजर्बाकार नौजवान थे। हमने समझा ये तो कच्चे लोग हैं, हमारे साथ ये मिलकर के कैसे जंग कर पाएंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि एक 7 साल 8 साल का 2 नौजवान हमारे सामने आया। एक का नाम हज़रत मुआज़ है, दूसरे का नाम मुअव्वज़ है या मुअव्विज़ है। ये दोनों तशरीफ़ लाए, दोनों आए और कहा चाचा जान आपसे एक बात पूछना है। कहा बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो। कहा आप अबू जहल को पहचानते हैं। कहा बेटा अबू जहल से तुम्हारा काम क्या है, वो तो कुफ़ार मक्का का के लश्कर का सरदार है, वो तो बड़ा आदमी है, तुम तो छोटे आदमी हो, क्या करोगे। कहा चाचा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। या बे चचा हमने सुना है वो रहमत आलम को गालियां देता है, मुस्तफ़ा दाने रहमत को अजियतें पहुंचाता है, आकाए करीम को तकलीफ़ें पहुंचाता है। मेरे चचा आप सिर्फ बता दीजिए कि कौन है, या तो हम मरेंगे या तो उसको मारेंगे, और जब हम उसको मार लेंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा या मुझे तस्कीन मिल जाएगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब गुस्ताखी करने वाला बाकी नहीं रहा है। हज़रत Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Qari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, Ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist,
Food partner Ashraf Biryani Center, Topsia, and Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of lacha. अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं, अभी ये दोनों बच्चे हमसे पूछ ही रहे थे कि इसी दरमियान अबू जहल नजर आया। मैंने कहा बेटा वो देखो जिसको तुम तलाश रहे हो ना, वो देखो अबू जहल सामने है। चुनांचे वो फरमाते हैं दोनों बच्चे बास की तरह झपट पड़े उस अबू जहल के ऊपर और अपने नन्ही नन्ही तलवारों से उसको जख्मी करके घायल करके ज़मीन पर गिरा दिया और फिर वहीं पे उसको फना फिन्नार कर दिया, वासिल जहन्नम कर दिया और वहीं पे उसको कत्ल कर दिया। जब ये दोनों अपने तलवारों की खून आलू तलवार लेकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे, सरकार को कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो, हमने आपके दुश्मन को कत्ल कर दिया। कहा किसको तुमने कत्ल किया? कहा अबू जहल को। कहा किसने कत्ल किया? दोनों बोल उठे सरकार हमने कत्ल किया। कहा तलवारें दिखाओ। जब दोनों तलवारें दिखाई तो दोनों की तलवारें खून आलूद थी। सरकार ने फरमाया तुम दोनों ने दुश्मन इस्लाम को और इस उम्मत के फिरऔन को कत्ल किया है। यहाँ एक और वाक़या दरमियान में आया है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले उमय्या बिन खल्फ के ग़ुलाम थे, उमय्या बिन खल्फ भी मैदान बद्र में आया हुआ था और वो भी कुफार मक्का के जानिब से मैदान जंग में वो भी बरसरे पैकार था। हज़रत बिलाल हबशी ढूंढ रहे थे कि कहीं पे वो जालिम मिले तो हम भी उसको शिकस्त फाश दें या उसको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। इसी दरमियान उमय्या बिन खल्फ भी नज़र आ गया तो अंसार सहाबा को हज़रत बिलाल ने कहा वो देखिए उमय्या बिन खल्फ नज़र आया है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं चूँकि मेरा देरीना उससे याराना था, दोस्ती थी, उसने मुझसे हिफाजत के लिए भीख मांगी और कहा देखिए बिलाल और उसके साथी लोग हमें कत्ल करने आ रहे हैं, हमारी हिफाजत फरमाइए, हमको बचाइए। और तो अब्दुर्रहमान फरमाते मैंने कहा कि तुम ज़मीन पे लेट जाओ। उमय्या बिन खल्फ ज़मीन पे लेट गया। अब्दुर्रहमान फरमाते मैं भी उसके ऊपर लेट गया ताकि उसको बचा सकूं, मगर बिलाल हबशी उसके हमारे टांगों के दरमियान से नेज़े और बर्छे को घोंप घोंप करके उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया। इस तरीके से घमसान की जंग मैदान बद्र में वाक़ होती है। चूँकि इस्लाम व कुफ्र की लड़ाई रोज़ अज़ल से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी और अलग अलग शक्लों में अलग अलग शख्सियतों के साथ, कभी हक हज़रत मूसा के साथ, कभी हक हज़रत फ़िरौन के साथ, कभी हक हज़रत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कभी बातिल नमरूद के साथ, कभी बातिल फ़िरौन के साथ और कभी बातिल अबू लहब अबू जहल के साथ नमूदार हुआ है। मगर हक हमेशा कामयाब रहा है। हक हमेशा फ़तह नुसरत का सेहरा पहन करके ऐलान किया है वजाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। मैदान बद्र में ये चंद मुट्ठी भर मुस्तफ़ा जान रहमत के यारों की जमाअत ने वो कमाल कर दिया कि 1000 दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त फाश दे करके 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 काफिरों को कैद करके मदीना शरीफ लेकर के आए। इनमें इस्लाम के मुजाहिदीन में से सिर्फ बाज़ लोगों ने 14 कहा है और बाज़ लोगों ने 11 ही कहा है, जिनमें 6 मुहाजिरीन थे और 8 अंसार सहाबा कराम शहीद हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजीम मौके पर आपकी दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमाकर हमेशा के लिए इस्लाम का बोलबाला फरमा दिया। इस्लाम की फतह नुसरत का झंडा क़यामत तक के लिए बुलंद फरमा दिया और ऐलान फरमाया सूरह आले इमरान में वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। रब ने फरमाया कि और अल्लाह ताला ने आपको मैदान बद्र में फ़तह मुबीन अता फरमाया जब आप ज़िल्लतों के करीब हो चुके थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस फ़तह पर शुक्राना अदा करते रहिए। इस तरीके से बहुत सारी आयतें आई हैं और सहाबाए कराम की मइयत ने खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मइयत में, सहाबाए कराम की मइयत में सरकार दो अलैहि वसल्लम को ये जो फ़तह मुबीन अता हुई है ना, वहीं से इस्लाम की सरबलंदी और इस्लाम की सरफराजी का रास्ता आगे बढ़ता है। और याद रखिए अगर मैदान बद्र में ये 313 मुट्ठी भर जमात मऊ हो जाते, कत्ल हो जाते, फना हो जाते तो फिर क़यामत तक के लिए इस्लाम का नामो निशान मिट जाता। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कि सुनो नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा और रोशनी खुदा हो, खुदा को गर हो मंजूर,
आंधियों में चिराग जलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान बद्र में अपने महबूब के उठे हुए हाथों की लाज रख लिया, दुआओं की आबरू रख करके आप रब कायनात ने फतह मुबीन अता फरमाया। और फरिश्तों को भी भेज करके हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, असर का वक्त था, हम लोग भी जब सरकार के साथ सहाबा के साथ कुफार मक्का से लड़ रहे थे, हमारे चेहरे पे भी गर्दो गबार आ गए और हम खुद, हमारा जिस्म भी गर्दो गबार से अटा हुआ था। असर के वक्त हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने सलाम अर्ज किया। सरकार ने फरमाया, जिब्रील मुबारक हो, आप लोगों ने इस जंग में शिरकत फरमाकर इस्लाम का झंडा बुलंद फरमाया है और हक व नुसरत को फतह मुबीन से हमकिनार किया है। हजरत जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद से नहीं आया हूँ, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है कि जाओ मेरे महबूब से पूछो कि अल्लाह ने आपकी दुआ भी कबूल कर लिया, आपको फतह भी अता फरमाया और फरिश्तों की जमाअत भी उतारा। क्या आप राजी हैं? अगर मेरे महबूब राजी हो जाएंगे तब वापस आना, और जब तक मुस्तफ़ा राजी ना हो वापस मत आना। सरकार ने फरमाया, रजी तो रजी तो रजी तो। जिब्रील, मैं अल्लाह के इस करम पे राजी हूँ, अल्लाह के इस करम पे राजी हूँ। सोचिए और गौर फरमाइए, एक ऐसा लश्कर जिसके पास असलहे नहीं है, जिसके पास सवारी नहीं है, जिसके पास खुर्दो नोश और सामान्य रसद नहीं है, जिसके पास वसाइल ज़राए की कमी है और दूसरी जानिब तमाम चीज़ों की फरावानी है, मगर उसके बावजूद हक की हिमायत की बुनियाद पर रब ने इस मौके पर इस्लाम को फतह मुबीन अता फरमाकर पूरी दुनियाए उम्मत को या दुनियाए इस्लाम को क़यामत तक के लिए गोया के इशारा फरमा दिया है कि वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। बस ये काम है कि सुस्ती मत करो और रंजीदा मत हो। यकीनन अल्लाह का वादा है, मुसलमान कामयाब होगा, मोमिन कामयाब होगा। और इसकी बुनियाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में मैदान बद्र में अल्लाह ने रखवाया और वहीं से इस्लाम को फतह मुबीन अता हुई है। और सुनिए आप, मैदान जंग का मामला ख़त्म होने के बाद तमाम जो काफिर कत्ल हुए थे ना, उन काफिरों को उठा करके एक गड्ढे में रखा गया। जंग ख़त्म होने के बाद सबसे पहले तो ये देखा गया कि जहाँ जहाँ हुजूर ने लकीरें खींची थी, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ वलीद मरेगा, यहाँ उमय्या बिन खल्फ मरेगा, यहाँ अबुल बख्तरी मरेगा, यहाँ फला भी मरेगा, यहाँ फला मरेगा, नज़र बिन हारिस मरेगा। जंग के खात्मे के बाद लोगों ने देखा तो सरकार की निशानदही की जगह पर ही वो काफिर वहीं पे कत्ल हुए थे। सबकी लाशों को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया गया। उमर फारूक हुजूर के साथ हैं। सरकार मैदान जंग का मुआयना करते हुए उस गड्ढे के करीब पहुँचे जहाँ पे लाशें काफिरों की रखी गई थी। आपने बबुलंद आवाज़ से बबांगे दुहल ऐलान फरमाया, ए कुफ़ार मक्का, क्या तुमको वो चीज़ें पहुँच गई जिसका वादा अल्लाह ने तुमसे किया था? अल्लाह ने जिस चीज़ का हमसे वादा फरमाया था वो चीज़ें तो हम लोगों ने पा लिया है। मतलब ये है कि अल्लाह ने हमसे फतह और नुसरत का वादा फरमाया था, अल्लाह ने हमें फतह मुबीन अता फरमाया और तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना था। अल्लाह की जानिब से ज़िल्लत और रुसवाई तुमको मैसर आई है। जब सरकार ने कुफ़ार की लाशों से ये जुमला मुखातिब होकर फरमाया था ना, तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो मर चुके हैं, इनका सर धड़ से अलग हो चुका है, इनकी रूह जिस्म से निकल चुकी है, ये कैसे आपकी आवाज़ को सुनेंगे? तो मेरे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे फारूक आज़म को आपने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, ए उमर इब्न खत्ताब सुनो, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुमसे ज़्यादा ये सुनने वाले हैं, मगर शर्त यह है कि ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। यहाँ से मिजाज मिलता है कि हम मुर्दों के भी समाअत के कायल हैं। और इस हदीस पाक के हवाले से ये साबित होता है कि कुफ़ारे मक्का मुर्दा होने के बाद भी सुनते हैं। जब काफिरों के सुनने का ये आलम है तो आम मोमिनों के सुनने का आलम क्या होगा? और जब आम मोमिनों के सुनने का ये आलम है तो मज़ारात में जो औलिया कराम आराम फरमा है और हम उनकी बारगाह में जाकर उनके तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते हैं, हमें यकीन कामिल है कि हमारी उन दुआओं को बुजुर्गान दीन अल्लाह की बारगाह में पेश फरमाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हमारी हाजत पूरी
करने की दुआएं फरमाते हैं, वो सुनते हैं। और अगर सुनते नहीं तो जब हदीस पाक में आया है इज़ा मररतुम बिलक़ुबूर फसल्लिमू अलैहिम, जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो तो मुर्दों को सलाम करो। मतलब ये है कि मुर्दे सुनते भी हैं। अब जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए, या सहाबाए कराम या गरीब नवाज गौसे पाक दिगर औलिया कराम मर के मिट्टी में मिल गए, पता चला कि उनका अकीदा इस हदीस पाक से बातिल है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा हक है कि मेरे सरकार के फरमान के एतबार से मुर्दे सुनते हैं, मोमिनीन सुनते हैं, और सोलहा सालहीन शुहदा और औलिया कामिलीन की जमाअतें भी अपने कब्रों से सुना करती है। यहाँ पे बस एक और बुनियादी बात मैं बता दूँ आप तमाम हजरात को, ये 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को ये जंग मैदान बदर में वाक़ई हुई थी। 12 रमज़ान को मदीना शरीफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में यह लश्कर निकला था, और फिर 17 रमज़ान को ये जंग मुनक़िद हुई, और उसी दिन अल्लाह ने फ़तह मुबीन अता फ़रमाया। और जब तमाम लश्कर इस्लाम खुशी खुशी मदीने की जानिब वापस पलटा, मदीने वाले मेरे सरकार और तमाम सहाबाए कराम को हदिया तबरीक पेश कर रहे थे, मुबारकबादी पेश कर रहे थे, खुश आमदेद कर रहे थे। और उसके बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद उल फित्र की नमाज आपकी उम्मत पर, आप पर वाजिब फरमाई, इस खुशी में कि आपको अल्लाह ने फ़तह मुबीन अता फरमाया है, और पूरा इस्लाम और पूरा इस्लामी लश्कर खुशियों से सरशार है। नमाज ईद अदा करके अल्लाह की बारगाह में शुक्राना पेश कीजिए। इस तरीके से हमें और आपको मैदान बद्र के हालात से एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि अगर किसी भी हालत में भी मुसलमानों को कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त आएगा अल्लाह ताला फिर इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमाएगा, अल्लाह ताला मुसलमानों को फिर फ़तह मुबीन अता फरमाएगा। इसलिए कहते हैं तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, तेगों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मज़लूम भाई बहनों की मदद फरमाए, और इस्लाम को हर जगह गलबा अता फरमाए, और शुहदाए बद्र और शुरकाए बद्र के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को फिर वही इज़्ज़त, वही आबरू, वही वक़ार अता फरमाए, और आपके चैनल को अल्लाह ताला मकबूलियत ताम्मा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Qari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, ex-councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center Topsia, and Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of Lacha.